Last day we discussed about Charvak philosophy. Charvak philosophy is materialistic philosophy. Materialism is core reality in Charvak philosophy. This materialism defined by Charvak philosophy with the support of sensuous experience. Sensuous experience is called perception in ordinary manner in philosophy. This perception is sense contact experience. But Charvak philosophy declared perception is only valid source of knowledge. If Charvak declared this is only valid source of knowledge. So Charvak philosophy refuted another types of source of knowledge which is considered in Indian philosophy, like as Anuman. Anuman is inference in Indian philosophy. Anuman is later knowledge based on pre-knowledge. Pre-knowledge is Vyapti according to Charvak philosophy. Vyapti is a technical term in Nyaya philosophy. Vyapti is a relation. If we use term relation between middle term and major term, this relation is specific relation. This is specific, but this is universal relation. If relation is universal, then we can say this relation is natural relation. If there is natural relation, then that is necessary and compulsory relation. So if we want to refute Charvak inference, then nervous system of inference is based on Vyapti. So Charvak philosophy refutes this Vyapti. Charvak declared in sense contact point of view, we perceive fire, sometimes we perceive smoke. We perceive middle term, otherwise major term. We cannot perceive relation. So we cannot say sense contact define relation. After that, Charvak philosophy refute universal relation. Universal relation based on observations. But we have few observations, they are related to present life. Present life is very limited life. We have few examples. When we define any conclusion, universal statement, then if observation based on few examples, then we completely ignored past experiences and we ignored future experience. So with the support of few instances, few examples, if we generalize, then according to philosophy, this is the fallacy of generalization. So Charvak philosophy refutes this thought. Again, if anyone want to define this relation as a natural relation, if there is a nature, then nature follow few rules like as cause and effect. If you perceive rainy clouds, then you infer there will be rain. So nature's law also based on inference. This process start. Inference based on Vyapti, Vyapti based on nature's law. Again nature's law based on inference. This is the fallacy of circle. Another word we can say, this is the petitio principii. A premises sentence again define that reality in conclusion that is same. This is the circular fallacy. This is the fallacy of circle.
If natural relation is refutable, so we refute necessary and compulsory relation also. If inference is a source of knowledge, this inference based on another types of source of knowledge, yani one is source of knowledge but this source of knowledge based on another is also source of knowledge. So this source of knowledge also required another. If another required another, then another also required another thing, another source of knowledge. Then this is the fallacy. This is the fallacy of infinite regress. Again, if Charvak says, if anyone believe in inference, but that being said, Vyapti is self-valid in knowledge. But define what is the real nature of Vyapti, we again based on inference. So Charvak comment, if inference based on Vyapti is based on inference, this is the fallacy of interdependence. So Charvak declared there are a lot of fallacies in Vyapti, and Vyapti is nervous system of Hanuman. If Vyapti is refutable, then inference is also refutable. After that, Nyaya philosophy refute comparison. Then firstly define comparison. With the support of similar knowledge, if we perceive any object, that is the comparison. Similar knowledge is valid, but this validity based on perception, and perception is sense contact, so validity of knowledge based on perception. So Charvak philosophy again declared, if your similar knowledge based on perception, then why you consider comparison as an independent source of knowledge? This source of knowledge including perception. Inference is refuted and comparison include in perception. After that, Charvak philosophy discuss testimony. Firstly, you define testimony. Trustworthy person, authentic person. Trustworthy person is a knower in a specific field, that being properly understand all type of dimensions in a specific field. But Charvak philosophy comment on authentic person. How we can say this being authentic being? Only this being is the authentic being. Then we again use infer. Again use inference. Well, inference is already refutable. Again Charvak philosophy comment on knower's knowledge, authentic person's knowledge. Only this authentic being attain a lot of knowledge, but this knowledge also based on sensuous experience, sense contact knowledge. This being attained, this knowledge by audibility, by visibility. If this knowledge based on audibility and visibility, so this is also sense contact. If this is sense contact, so this is perception. So by refutation method, I discuss Indian philosophy also believe in refutation, but refutation is purposeful. By this refutation, Charvak philosophy declared perception is only valid source of knowledge. क्लियर? ये तो कल का ही लेक्चर था जो आपने रिवाइज किया. अब तो ये चारवाक का व्यू था. बेचारे जो सोर्स ऑफ नॉलेज और मान रहे थे ना, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टमनी. हमारी क्लास का नेचर ऐसा ही रहेगा, ध्यान रखना. हमारा मेन फोकस आपके रिवीजन पर ही होता है. आप बस क्लास में अलर्ट रहना और कंप्लीटली इन्वॉल्व विद इन 3 आवर्स. ठीक ना? 3 आवर ही इन्वॉल्व करना फिलॉसफी के साथ, आपको फिलॉसफी आ जाएगी.
मैंने कहा 10 मिनट्स कभी भी दिन में निकल आए जब जीएस पढ़ते पढ़ते तो बस टर्म्स लिख लेना, दैट इज सफिशिएंट फॉर फिलोसफी। यही क्लास में सिखा लेंगे और मेरे लिए इट इज नॉट फर्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक ना, एक्सपीरियंस फर्स्ट नहीं होगा मेरे लिए, आप लोगों के लिए फर्स्ट होगा, लेकिन आप लोग जान जाओ। देखें जरा फिलहाल, चारवाक ने अपनी तो बात रख दी, उसने डिक्लेयर किया कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो क्रिटिसाइज किस कर रहा था? न्याय फिलॉसफी को। होल इंडियन फिलॉसफी बिलीव्स इन इन्फ्रेंस, so whole philosophy completely refute Charvak's philosophy. Jainism, Buddhism, Sankhya, Nyaya, Advaita Vedanta, everyone refute Charvak philosophy. हर कोई तैयार बैठा है। तुमने कहा कैसे कि inference is refutable और perception is only valid source of knowledge? तो पहले तो उसकी ही बात को पकड़ लिया कि हाउ यू कैन से परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। आप चारवाक की कही बातों को हम क्रिटिसाइज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक ना। देखें जरा क्रिटिसिज्म, तो लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। In practical life, if we attain any knowledge by sense contact, but there are a lot of contradiction in sense contact. Every day we perceive the sun. The disk of sun is very small, but this is not reality. रोज देखते हैं कि सूरज छोटा है, तो क्या सेंस कॉन्टेक्ट ने सही बताया क्या आपको? नहीं बताया ना। इफ यू गो टू डिजर्ट, तो देन यू सी देयर इज ए वाटर, तो सेंस कॉन्टेक्ट अगेन एंड अगेन not define real knowledge. Every day we perceive this earth is completely flat, but this earth is not flat, this is round. In reality we think we are still, but this is not real. There are a lot of experience in life. फिजिक्स में क्या करते हैं, जैसे भाई पेंसिल ली, पानी में डाल दी, अब देखते हैं ना पेंसिल तो बिल्कुल सीधी थी, पानी में डालते तिरछी दिखने लगी। अब सामने सामने देख रहे हैं, पेंसिल तिरछी दिख रही है, तो क्या ये सही है क्या? If Charvak philosophy declared perception is valid source of knowledge, but this is not acceptable because there are a lot of contradiction in perception. एक नहीं कई बार गलतियां हो रही भाई। If you have only one valid source, but that source define a lot of contradiction in knowledge, so we cannot say this is valid source of knowledge. क्लियर? पहला कमेंट किया कि आप ये कहते हो कि परसेप्शन वैलिड है, तो परसेप्शन भी कहां वैलिड रहा? इतने सारे कंट्राडिक्शन, और प्रैक्टिकल लाइफ में इतने कंट्राडिक्शन देख रहे हैं साहब। इन प्रैक्टिकलिटी वी हैव ए लॉट ऑफ कंट्राडिक्शंस, इतने सारे कंट्राडिक्शंस, तो हम कैसे कह सकते हैं? लोगों ने फिर और खींचा इस फिलॉसफी को। इस पॉइंट को समझना है।
If Charvak philosophy declared perception is only valid source of knowledge. Clear? उसने लाइन रखी है क्या? Perception is only valid source of knowledge. तो ये चारवाक की थ्योरी एक रूल बनाने की कोशिश कर रही ना, रूल बना रही ना ये. अगर रूल बना रहे हो तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बोल रहे हो ना. क्लियर? अगर यूनिवर्सल बोल रहे हो तो इन्फ्रेंस हुआ ना. तो लोगों ने फिर पकड़ लिया. If Charvak philosophy declared perception is only valid source of knowledge, so Charvak philosophy indirectly believe in inference. If one side Charvak philosophy refute inference, but another side Charvak philosophy refute inference, so this is contradiction. क्लियर सभी को लाइन ये? एक तरफ तो साहब कह रहा है कि हम अनुमान नहीं मानेंगे, लेकिन जब अपनी ही बात आई ना तो अनुमान की तरह ही बात कर रहा है. क्लियर सभी को लाइन ना? If Charvak philosophy declared perception is only valid source of knowledge, अगर मैंने कहा परसेप्शन एकमात्र प्रमाण है, तो आप कैसे कह रहे हो ये? आपने भी एक रूल बनाने की कोशिश की ना, आपने यूनिवर्सल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की ना, तो आपने आप ही पॉइंट हो गया कि if Charvak philosophy refute inference, then Charvak philosophy refute thyself. If Charvak philosophy accept inference, you accept this statement, so inference is already accepted in philosophy. Clear? और गिर गया वो. अब क्रिटिक्स को थोड़ा और मौका मिल गया, अब तो बेचारा गिरने ही लगा. पॉइंट रखा कि दिस परसेप्शन बेस्ड ऑन सेंस कॉन्टेक्ट. So critic says, if our senses completely corrupt, मान लो हमारे सेंसेस करप्ट हो जाएं, खराब हो जाएं, किसी को जॉइंडिस हो गया, if that being perceive this board, then that being say this is white board, next sorry, this is the yellow board. If error in senses, then how Charvak philosophy defined different objects, different realities? तो एक समस्या और हो गई कि बेचारा सेंस पर डिपेंड और सेंस खराब हो गई. सुनते रहते हो जो पति पत्नी का झगड़ा हुआ, बड़ी देर झगड़ा चलता रहा, पत्नी चिल्लाई, अरे तुम सुनते ही नहीं हो. अब बेचारा सुने कैसे पति, उसे तो सुनाई ही नहीं देता है. बोले इतनी देर समझाया जा रहे. तो ऐसे ही समझो, अगर सेंसेस ही खराब हो गई तो हाउ चारवाक फिलॉसफी अटेन नॉलेज. एक समस्या और आ गई. तो लोगों ने से तो इस परसेप्शन भी क्वेश्चन मार्क कर दिया. अब लोगों ने कहा अच्छा तुम इन्फ्रेंस को रिफ्यूट करते हो, इन्फ्रेंस को देखो जरा क्या रिफ्यूट करने से नुकसान है. इफ चारवाक फिलॉसफी कंप्लीटली बिलीव इन सेंस कॉन्टेक्ट, कल तो चाय पी थी मैंने, कल गर्म थी, आज पता नहीं गर्म होगी कि नहीं होगी. इफ यू वांट टू डिफाइन दिस प्रैक्टिकल लाइफ, देन यू बिलीव इन इन्फ्रेंस. यदि जीवन को जीना है ना, तो अनुमान करना ही पड़ेगा कि कल जो चाय पी थी वो गर्म थी, आज मैं जो चाय पीने जा रहा हूं वो भी गर्म ही होगी. कल तो समझ में आ गई थी फिलॉसफी, आज पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी. कल तो ट्रेन मिल गई थी, आज पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी. कल खाना खाया था पेट भर गया था, आज पता नहीं खाना खाएंगे पेट भरेगा कि नहीं भरेगा. पानी पिएंगे पता नहीं पानी प्यास बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा. If you oppose inference, then practical life is very difficult. Without inference you cannot survive. बिना अनुमान की तो सरवाइव कर ही नहीं पाओगे. Every aspect completely convert in doubt.
If there is doubt, then your life completely convert in skepticism. एक संशय बदल जाएगी. So it is very difficult to survive in this life. सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन फ्रेंड्स को नहीं मानोगे तो. अनुमान तो करना ही पड़ेगा साहब, बिना अनुमान की तो बात बनेगी नहीं. दैनिक जीवन जीना ही मुहाल हो जाएगा. फिर लोगों ने और कमेंट किया इस पर. इफ चारवाक फिलोसफी कन्वे एनीथिंग अनदर बीइंग and thyself Charvak understand a lot of things, then inference is compulsory. भाई यदि चारवाक किसी की बात को समझना चाहता है और समझाना चाहता है तो ना तो बेचारा किसी की बात समझ सकता है और ना ही समझा सकता है, क्योंकि वो अनुमान को तो मानता ही नहीं. एक बड़ी समस्या हो जाएगी. अब एक मूवी में था कि मान लो कोई जापान देखने गया, तो बोले साहब मैंने तो देखा ही नहीं जापान में, तो मानूंगे नहीं जापान होता है. भाई ये तो कोई बात ही नहीं कि आपने नहीं देखा तो नहीं मानोगे. लोगों ने इस पर कुतर्क किए. कुतर्क मतलब होता तर्क को काट दे, बुरा तर्क, बैड जजमेंट, बैड लॉजिक. लिखना नहीं एग्जाम में, वैसे मजे के लिए बता रहा हूं. चारवाक भी सी थे मैंने बताया जिन्होंने इस फिलॉसफी को बनाया. तो लोगों ने कमेंट किया कि चारवाक मुनि जब घर पर नहीं होते होंगे ना, तो उनकी पत्नी जोर जोर से छाती पीटने लगती हो, रोने चिल्लाने लगती हो, चारवाक नहीं रहे, चारवाक नहीं रहे, चारवाक नहीं रहे. बिकॉज चारवाक बिलीव इन सेंस कॉन्टेक्ट. बोले साहब ये क्या बात हुई, क्या एवरीथिंग कंप्लीटली बिलीव इन सेंस कॉन्टेक्ट. और इट इज वेरी डिफिकल्ट विदाउट इन्फ्लुएंस. बिना अनुमान की तो बात ही नहीं बनेगी. होल इंडियन फिलॉसफी बिलीव इन इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस को भाई काट ही नहीं सकते हो. अगर इन्फ्लुएंस को हटा दिया ना तो यूपीएससी में एग्जाम पास करना कितना कठिन हो जाएगा. प्रीलिम्स में सोच के देखो जरा, हैं? बहुत कठिन हो जाएगा ना. इंस्टेंट बच्चों को तो 25 या 30 सवाल ही आते हैं ना एग्जाम में, बाकी तो सब कुछ इन्फ्लुएंस से ही चलता है ना. चाहे जितना बड़ा टॉपर हो, ध्यान रखो इंस्टेंट बच्चों को 30-35 सवाल ही आते हैं, फिर एनालिसिस चलता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके बाद टिक होता है. तो आप समझ सकते हो प्रीलिम्स तो कभी नहीं होगा इन्फ्लुएंस नहीं मानोगे तो. भले या सबसे तुक्का कह दो, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल तो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस बोलते हो उसे. तो विदाउट इन्फ्लुएंस वी कैन नॉट सर्वाइव. तो इन्फ्लुएंस की इंपॉर्टेंस अपने आप ही समझ में आने लगी. फिर चारवाक ने रिफ्यूट किया था कंपैरिजन. तो चारवाक ने पॉइंट रखा कि परसेप्शन इंक्लूड दिस कंपैरिजन, बट न्याय फिलॉसफी कमेंट ऑन चारवाक. Charvak completely forget first requirement is similar knowledge. After that, in future, if you perceive object, then you know. एग्जाम्पल था ना आपका कि जंगल गए, किसी ने बता रखा था. अरे किसी ने बताया ना होता तो जंगल में जाके उस जानवर को ही देख रहे होते ना अकेला. तो न्याय फिलॉसफी कमेंट ऑन चारवाक. यू डू नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीट थिंग. सिमिलर नॉलेज इज रिक्वायर्ड. क्लियर? सिमिलर नॉलेज इज रिक्वायर्ड. विदाउट सिमिलर नॉलेज परसेप्शन इज इररिलेवेंट. जब तक सिमिलर नॉलेज नहीं हुई ना
तो irrelevant हो जाएगा, बात समझ ही नहीं पाएंगे पूरी. So if Charvak philosophy refute comparison, this is not valid. ये भी सही नहीं है. हाँ, we cannot ignore perception, but we cannot firstly ignore comparative knowledge. So this is not acceptable. इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि साहब को कंपेरिजन नॉलेज होती नहीं है. जब तक कोई बताएगा नहीं बहुत सारी चीजें ना, तो आप कंपेयर करोगे कैसे, जानोगे कैसे. तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, Charvak philosophy not properly understand what is the comparison. Perception is required, but basic needs similar knowledge. So if Charvak philosophy refute comparison, so this is not acceptable for Nyaya philosophy. Okay. After that, Charvak philosophy refute testimony. चारवाक ने कमेंट किया कि हम कैसे मान लें कि आप ऑथेंटिक हो. There are a lot of fields, physics, chemistry, bio, medical science, geography, there are a lot of fields. But Charvak philosophy believe in sense contact only. So Charvak philosophy has very limited knowledge. Charvak not define different fields, different areas, because Charvak has very limited knowledge. अगर ऑथेंटिक बीइंग्स को इग्नोर करने लगोगे तो नॉलेज की तो बहुत ही कम सीमा होगी. थ्योरीज, आइडियाज, thought completely refuted. But theories, ideas, thoughts are essential if we want to attain a lot of knowledge. अगर चारवाक के सेंस कॉन्टेक्ट को माना जाए तो हमें डिफरेंट डायमेंशंस की नॉलेज नहीं होगी, डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज नहीं होगी. तो इस बात को भी नहीं माना जा सकता है. वो मैंने एक पॉइंट और रखा कि जो सेंस कॉन्टेक्ट है उसकी तो एक लिमिट होगी, वैसे ही वो और फील्ड को समझने में इनकैपेबल हो जाएगा. क्लियर. तो इस पॉइंट को भी एक्सेप्ट नहीं किया सकता था. फिर चारवाक फिलॉसफी ने एक कमेंट और किया, वैदिक नॉलेज इज सेल्फ कंट्राडिक्टरी नॉलेज. ये तो उसका पॉइंट था ना. तो क्रिटिक्स ने भी क्रिटिसाइज किया इसके पॉइंट को, बिकॉज चारवाक फिलॉसफी इज ओनली वन वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. देयर आर ए लॉट ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज, inference, comparison, testimony, Indian philosophy, another source of knowledge, implication and negation. Charvak philosophy has very limited source of knowledge. So Charvak philosophy not properly understand what Vedas define. Actually में क्या है, चारवाक के पास एक ही अकेला सोर्स ऑफ नॉलेज है. दोस्तों कहां तक ये जानेगा, समझो जरा. फिलॉसफी में और भी सोर्स ऑफ नॉलेज है, जैसे कि एक सोर्स ऑफ नॉलेज है इम्प्लीकेशन, इसे टेक्निकली कहा जाता है अर्थापत्ति. इंग्लिश में समझो फिलहाल, अभी आगे पढ़ोगे. इम्प्लीकेशन जैसे मान लो कि देवदत्त नामक कोई व्यक्ति है. ड्यूरिंग ए डे देवदत्त नॉट टेकन फूड. पूरे दिन में देवदत्त खाना नहीं खाता है. बट व्हेन वी परसीव देवदत्त इज वेरी फैट. दो सेंटेंस हो गए. पूरे दिन में देवदत्त खाना नहीं खाता है, दो सेंटेंस आया. दूसरा एक्सपीरियंस, देवदत्त मोटा है. तो अपने आप इंडिकेट कर लोगे सेंटेंस को. अरे दिन में नहीं खाता तो रात में जरूर खाता है. बिना खाए कोई मोटा होता है क्या? There are two contradictory statements, there are two contradictory experience. Vedic thought are contradictory. But if Charvak philosophy properly understand implication,
then Charvak philosophy not comment on Vedas. If Indian philosophy convey anything, that thing completely based on reference. Charvak philosophy completely ignore reference. Clear? चारवाक भूल रहा है जिससे वो जानने की कोशिश कर रहा है ना, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक ना। उसे वैदिक नॉलेज कंट्राडिक्टरी इसलिए लगी कि बेचारा देखने और सुनने पर निर्भर है। तो देख तो हम दो चीजें रहे ना, देवदत्त दिन में खाना नहीं खा रहा है और देवदत्त मोटा है। फिर भी तीसरा सेंटेंस निकल आया ना, देवदत्त रात में खाना खाता होगा। भाई मान लो कोई देवदत्त के घर में गया, उसने नॉक किया कि देवदत्त घर में है, एक सेंटेंस, एक एक्सपीरियंस उसने किया, अंदर से आवाज आई उसकी मां की कि देवदत्त घर में नहीं है। सुना ना उसने भी सुना और इसने भी सुना, तो तीसरा सेंटेंस अपने आप बन जाता है ना कि देवदत्त घर के बाहर कहीं घूम रहा होगा। फिर तो if there are contradiction in audibility and visibility, तो contradiction define a new thing. Contradiction for contradiction is not valid. अपनी इंडियन फिलोसॉफी ने एक पॉइंट रखा कि if there is contradiction in visibility and audibility, then we implicate third statement, a third experience. But Charvak philosophy has very limited knowledge. So Charvak philosophy says there are a lot of contradictions in Vedas. फिर उसने एक बात और कह दी थी, few selfish person, ठीक ना, तो इसको भी काउंटर कर ही दो फिर। If there are few persons, they are selfish, but we cannot generalize. जो बेचारा वहां काट के आ रहा था वो तो इस पे भी लग रहा है ना। If few persons, वो तो मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, वो सभी के लिए बात कर रहा था फिलहाल चारवाक, लेकिन आपको तो फ्यू ही लिखना है, ठीक ना एग्जाम में। If few persons are completely selfish, then we cannot generalize this statement. So Charvak criticism is completely refuted by a lot of thinkers. तो बेचारे चारवाक की बातें सभी कट गई, कुछ नहीं बचा उसके पास। इसकी और भी क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, ध्यान रखो। मैंने अभी आपके लिए कोई भी थिंकर नहीं बोला है। जैसे जैसे आप आगे फिलॉसफी पढ़ते जाओगे ना, थिंकरों के नाम जान जाओगे, सांग थिंकर, न्याय थिंकर, इसलिए मैं हल्का सा रेफरेंस ले रहा हूँ। और फिलॉसफी में एक बात बहुत ध्यान रखना, आप थिंकर्स के नाम नहीं भी लिखते हो ना तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू न्याय, अकॉर्डिंग टू, आपको जो लिखना है वो थॉट लिखना है। यहाँ थॉट की कीमत है। अगर आप किसी थिंकर का नाम नहीं जानते हो तो बिल्कुल मत लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता, बिल्कुल नंबर नहीं कटता, ध्यान रखो फिलॉसफी में। लेकिन आपने गलत लिख दिया ना तो वो 0 कर देगा। ये बहुत ध्यान रखना है इसके एग्जाम में। कुछ बच्चे होते हैं ना, प्लान करके जाते हैं, थिंकरों के नाम ही लिखते रहेंगे। अरे ये चल जाता था 10th क्लास में, 12th में, उस टीचर को भी पता नहीं होता, इसलिए चल जाता था। यहाँ बड़े बूढ़े टीचर होते हैं, ठीक ना, वो सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि आपने क्या गलती की है, बस ये देखने के लिए। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट बेस्ड ऑन सिलेक्शन, दिस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रिजेक्शन। ये हमेशा ध्यान रखना। वो हमेशा ये कहेंगे भाई अभी थोड़ा रुको, कुछ और वेट करो, 1 आध साल और रुक के आओ, थोड़ा सीख कर आना। तो चारवाक फिलोसॉफी की जो एपिस्टेमोलॉजी थी जो उन्होंने प्रेजेंट की, वो पूरी तरह से रिफ्यूट हो गई। लेकिन आपका एक पार्ट और है अभी, मेटाफिजिक्स का। देखें जरा चारवाक्स मेटाफिजिक्स। फिलॉसफी में एक बात और ध्यान रखना है आप सभी को
कि फिलॉसफी में नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ वर्ड्स इतने काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक ना। आपकी पूरी कॉपी में जो आंसर राइटिंग है उसमें अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, ध्यान रखो। ये नहीं सोचना कि हम ये पॉइंट्स नहीं लिख पाए, ये पॉइंट्स नहीं लिख पाए, ये पॉइंट्स नहीं लिख पाए, मेरा ये छूट गया। फिलॉसफी में बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे जो बात पूछी गई आपने समझा दिए, क्लियर हो गई है, टेक्निकल टर्म लिखे हुए, मार्क्स देगा वो टीचर। यूपीएससी में 200 वर्ड्स में लिखना हो, आके 125 वर्ड्स में आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो रहने दो, आप उसे एक्सपेंड मत करो। फिलॉसफी मैथमेटिक्स है, पूरी तरह से सॉल्व हो गया तो हो गया। बच्चों याद करते अरे 200 वर्ड्स में पूछा, लिखना ही है साहब, तो उसके बाद लिखा, बहुत कचरा लिखा तो इम्पैक्ट और ख़राब कर देता है। पूछा अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अपने बारे में बता दिया, अपने दोस्त के बारे में बता देते हैं सर को आज, तो बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ठीक है ना। तो बाकी तो लाइनों काट देगा ना। ये सोचते हैं आर्ट्स, अरे आर्ट्स जरूर है ये सब्जेक्ट, लेकिन समझो, एक समझदार व्यक्ति बनो ना, ये बिल्कुल नहीं करना। बच्चे सोचते हैं कि सब लिखाओ, ऐसा नहीं करना, जो पूछे ना वही लिखना है। आज हम बात भी करेंगे मेटाफिजिक्स, नेक्स्ट पार्ट। यूपीएससी ने इसको सिलेबस में सिर्फ इतना यूज किया है, रिफ्यूटेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलिटीज या एंटिटीज, ठीक ना। लेकिन ये टॉपिक इसी का एक सबसेट होता है जिसमें समझना है हमें। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि किसी को भी फिलोसोफर बनना है ना, तो उसे 3 पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे। कौन कौन से? गॉड, सोल और वर्ल्ड। अगर ऐसे ही फिलोसोफर बनना है ना, ये 3 पॉइंट डिस्कस करे जम के, तो ये भी फिलोसोफर बन जाएगा। एक बच्चे ने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, मैं देख रहा था, उसने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलोसोफर एंड थिंकर, ठीक ना। थिंकर जो है वो किसी फील्ड में हो सकता है, सोशियोलॉजी में भी हो सकता है, पब्लिक एड में भी हो सकता है। स्पेसिफिक थॉट प्रोसेसिंग जो चले किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर, तो बन जाता है थिंकर। तो थिंकर तो कोई भी हो सकता है। सोसाइटी पर सोचे तो वो थिंकर, इस डेमोक्रेसी पर सोचे तो वो भी थिंकर, फैमिली के बारे में सोचे तो भी वो थिंकर। लेकिन जो फिलोसोफर है वो 3 चीजें सोचेगा पहले, गॉड, सोल एंड वर्ल्ड। तो एवरी थिंकर इज फिलोसोफर, ठीक ना। हर थिंकर जो है क्या फिलोसोफर बनेगा? अगर वो थिंकर गॉड, सोल एंड वर्ल्ड सोच रहा है तो दिस थिंकर इज ए फिलोसोफर, ठीक ना। फिलोसोफर, एवरी फिलोसोफर इज थिंकर, बट एवरी थिंकर इज नॉट फिलोसोफर। ध्यान रखना, जो गॉड, सोल और वर्ल्ड पर सोच रहा होगा ना, वही फिलोसॉफी की भाषा में फिलोसोफर रखा जाता है, बस। क्लियर? ध्यान रखना। तो 4 वाक्य फिलोसॉफी है। तो अपने दूसरे पार्ट पर डिस्कस करते हैं, मेटाफिजिक्स पर। तो मेटाफिजिक्स में मैंने आपको समझाया है, उसे 3 पार्ट डिस्कस करने हैं। वर्ड, सोल एंड गॉड। ना बिल्कुल फ्री करना माइंड को, ठीक ना। कोई वर्डन मत लेना, आपको आसानी से आएगा। कि हम कोई भी चीज सिखाते हैं उनको प्रैक्टिकलिटी से लेकर चलते हैं आपको, ठीक ना। फिर बाद में हम लोग कंसाइज कर लेते हैं अपने पूरे टॉपिक को। देखें जरा, वर्ल्ड जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं संसार, जगत, टेक्निकल टर्म है जगत, ठीक ना। टेक्निकल टर्म इसका जो लिखा जाएगा तो हिंदी का टर्म है जगत। अगर वर्ल्ड को समझना है, ठीक ना, तो ये चीजें हैं ना, जो बोर्ड सब जितनी भी चीजें हैं, तो फिलॉसफी की लैंग्वेज में ध्यान रखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड वर्ल्ड। फिलॉसफी में वर्ल्ड और बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वर्ल्डली थिंग्स आर मैटर, दिस बॉडी इज मैटर। क्लियर? दिस पॉइंट समझो, सभी लोग समझते होगे। वर्ल्ड इन रियलिटी मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स,
वर्ल्ड जो है वो 5 एलिमेंट से बना है, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड ईथर और स्पेस। ईथर स्पेस एक ही सेंस मिली है। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स if you want to define this world. Our body also made of 5 elements: earth, fire, water, air and ether. This worldly things also made of 5 elements. जैसे हिंदू कल्चर में होता है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसे जलाने ले जाते हैं, फिर एक लाइन यूज करते, पंच तत्व में विलीन हो गए। तो कैसे होता है देखो जरा, उसको जलाया ना तो फायर आई उसमें, तो फायर ने अपना काम कर दिया। फायर बिना एयर के तो नहीं जलेगी ना, तो फायर एयर आ गया, तो जो बचा ना, राख बची ना, वो अर्थली एलिमेंट हो गया। जो ये सब कुछ चल रहा है ना, सब स्पेस में चल रहा है ना, उसके बाद क्या करते हैं, जो राख होती है उसको भी पानी में विसर्जित कराते हैं। कुछ नहीं छोड़कर जाओगे संसार में, सब कुछ, everything defined by these elements. So after some time these elements completely attain a different elements part, because these elements are subset of these elements. जो 5 तत्वों का जो हिस्सा है ना, वो उस तत्व को ले लेगा बाद में जाके, इसलिए अपने टर्म यूज होता है पंच तत्व में विलीन हो गए, कुछ नहीं रह जाएगा, एक ही चीज बचेगी, वो भी कॉन्शियसनेस। देखें जरा, इंडियन फिलॉसफी बड़ी एक्सपर्ट है इन सब बातों में, बातें करने में। तो आप समझ सकते हो, तो पूरी की पूरी इंडियन फिलॉसफी, एक लाइन आगे बढ़ेगी, मैनेज करते हैं। होल इंडियन फिलॉसफी बिलीव इन 5 एलिमेंट्स। तो आपने नाम लिखे, अर्थ, ठीक ना, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस। होल इंडियन फिलॉसफी बिलीव्स इन 5 एलिमेंट्स, but Charvak philosophy believes in materialism. Okay, this materialism based on sense contact. Okay, sense contact is possible with earth, sense contact is possible with fire, water and air, but sense contact is not possible with space. क्लियर हुआ सभी को ना पॉइंट? आकाश को देख नहीं रहे हो, ध्यान रखना, ठीक ना। बच्चे सोचते हैं देख रहे हैं, कहीं नहीं देख रहे हो, हमारे और आपके बीच में भी स्पेस है, लेकिन हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, स्पेस नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी, ध्यान रखो, ठीक ना। तो चारवाक फिलॉसफी बिलीव्स इन 4 एलिमेंट्स। लाइन अपने आप आगे बढ़ जाएगी, बिकॉज Charvak philosophy believe in sense contact. So sense contact is possible with 4 elements. Sense contact is not possible with space. Clear? Line clear हो गई? And Indian philosophy believe in space by inference. Indian philosophy इसको मानती inference से, तो लाइन आगे खींच जाएगी अपने आप ही। But Charvak philosophy completely refuted inference. अपने आप लाइन आगे बढ़ेगी, ध्यान रखना। Indian philosophy believes in 5 elements, but Charvak philosophy not believe in, तो नाम उनके सबके लिख दो। There are 5 elements: earth, fire, water, air and space. But Charvak philosophy not believe in 5 elements. Charvak philosophy believe in 4 elements. They are earth, fire, water and air. Charvak philosophy not believe in space, because space is inferred, a space based on inference, and Charvak philosophy completely refute inference. So there are 4 elements for world theory in Charvak philosophy. Clear? तो Charvak philosophy के पास सिर्फ 4 ही पॉइंट बचे।
क्लियर सभी को पॉइंट ये? अब देखो जरा, तो ये हो गया मैटर बनाने के लिए। जैसे मान लो कि हमें एक टेबल बनानी हुई या चेयर बनानी हुई, तो चेयर या टेबल के लिए समझो ये हो गई लकड़ी है, वुड, ठीक ना। तो ये एलिमेंट होगा एक तरीके से मटेरियल। क्लियर ना पॉइंट? अब उस मटेरियल का नेचर भी तो बताना पड़ेगा, कैसा मटेरियल है, सागौन का है, बबूल का है, आम का है, इसका नेचर बताना पड़ेगा टेक्निकली। तो थोड़ी बात आगे बढ़ी। टेक्निकली मैंने कहा कि दिस इज मैटर। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि मैटर डिवाइड इनटू पार्ट्स, एटम एंड कंपाउंड, ठीक ना। दीज आर मटेरियल एलिमेंट। ओके, अब मैटर का नेचर पकड़ा। मैटर इन रियलिटी डिवाइड इनटू पार्ट्स, एटॉमिक फॉर्म एंड कंपाउंड फॉर्म। अब देखें जरा, फिलहाल यूज करना में दीज एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स हैं ये, तो अगर कोई चीज, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे पॉलीमराइजेशन, अगर कोई चीज बना रहे हैं ना, मोनो, डाई, टेट्रा, आगे बढ़े हेक्सा, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ती है ना टेक्निकली। अब देखो जरा, अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलॉसफी, these elements are not considered as a atomic form. लाइन अपने आप आगे बढ़ी कैसे? Because चारवाक philosophy believe in sense contact. एटम को तुम कांटेक्ट नहीं कर सकते ना टेक्निकली। There are 4 elements, but these elements not considered as a atomic form. Clear? लाइन क्लियर करोगे? Because atom not defined by sensuous experience. In Indian philosophy, atom is based on inference. भाई कोई भी कंपाउंड बना है, जैसे यही कंपाउंड बना है, तो ये कंपाउंड बना तो एटम से ही है ना, लेकिन हमें एटम से ना दिख रहा है। अब अगर चारवाक को जो दिख नहीं रहा है ना, वो तो मानेगा ही नहीं। तो टेक्निकली देयर आर 4 एलिमेंट्स, but Charvak not believe these element as a atomic form. Charvak philosophy directly consider these elements as a compound form. उसे तो कंपाउंड फॉर्म में ही मानना है। तो लाइन क्लियर कर दो, Charvak philosophy not believe in atomic form because atomic form based on inference and Charvak philosophy refute inference. Charvak philosophy directly believe in compound reality because compound is possible by sense contact. Clear? तो चार, दूसरा पॉइंट अपना मूव कर गया इसमें कि these element, इसने स्पेस को नहीं माना, ध्यान रखना, और जो ये एलिमेंट थे इनके एटॉमिक फॉर्म को नहीं माना। बेचारा मान ही नहीं सकता है, तो अपने आप पकड़ लो, गलतियां कर रहा है ये, तो फिर क्रिटिसाइज करेंगे मजे से बैठ के फिर इसको। चारवाक फिलॉसफी डायरेक्टली बिलीव इन कंपाउंड एलिमेंट। कंपाउंड रियलिटीज मान रहा है वो, तो आपके पास रीजन पता है क्यों मान रहा है। अब समझो, हम आगे बढ़ते हैं, इस लाइन खींचते हैं। इस थिंकर का सोचना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नेचर होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब जुड़ना, इंटीग्रेट करना। इसके दिमाग में कुछ चल रहा है इस थिंकर के, देखें जरा क्या चल रहा है। उसने सोचा इफ देयर इज फायर देन देयर इज ए हीट। समझते हैं इसके पॉइंट को? इफ देयर इज फायर देन देयर इज ए हीट। इसके दिमाग में रखा, इफ देयर इज एलिमेंट देन एलिमेंट डिफाइन इट्स नेचर। क्लियर? अगर कोई भी एलिमेंट है उसका नेचर होता है। सो चारवाक फिलॉसफी थिंक इफ देयर इज ए एलिमेंट देन एलिमेंट हैज इट्स नेचर। इट्स नेचर इज कंपाउंड नेचर। ऐसे ले जा रहा है, बोले हम जो भी एलिमेंट सोच रहे हैं उस एलिमेंट का नेचर ही कंपाउंड है।
कंपाउंड का मतलब जुड़ना। तो ये थिंकर सोच रहा है कि दीज एलिमेंट इंटीग्रेट विथ ईच अदर। बोले एलिमेंट खुद से जुड़ जाते, जरा फिजिक्स की भाषा में समझ, केमिस्ट्री भाषा में समझ कुछ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो तो जुड़ जाते ना, H2O बन गया आपका। लिखना नहीं एग्जाम्पल समझने के लिए बोला, ठीक ना। उस जमाने में सकता ऐसा सोच लिया उसने लिखाना हो उस जमाने में, तो उसने कहा कि दीज एलिमेंट्स हैज इट्स नेचर एंड इट्स नेचर इज कंपाउंड नेचर, सो दे इंटीग्रेट विथ ईच अदर। तो उसने पॉइंट रखा कि ये जो कंपाउंड, ये टर्म ही खुद ही को क्लियर कर रहा था वैसे तो। बोले ये एलिमेंट होते हैं, लास्ट दिख रहा है यहां तक सबको, लास्ट में थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं। तो ये थिंकर कहने वाला है कि एलिमेंट्स जो हैं खुद से जुड़ जाते हैं। अब देखो इस पॉइंट से, यानी दीज एलिमेंट इंटीग्रेट विद ईच अदर। तो भाई ये तो इसका नेचर हो गया ना फिर तो, ठीक ना, ये एलिमेंट्स का नेचर हो गया। नेचर को कहते हैं स्वभाव, ये टेक्निकल टर्म हो गया स्वभाव। जो ये कंपाउंड है ना, तो वो तो नहीं संघ बनाना, ग्रुप बनाना, तो उस जमाने में कंपाउंड तो नहीं बोलता होगा चार बाग ना, वो तो हम लोग अभी बोलने लगे। उस जमाने में कहा जाता था कंपाउंड को संघात, ठीक ना। शायद लाइन सुनियो, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में रहना है ना, जीना है ना, तो समूह बनाकर ही रहना पड़ेगा। देख लो इसी पार्टियां समूह बनाकर रहती हैं। जितने दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो तो ये समझ गए, लेकिन जो अपने को तथाकथित समझदार बोलते हैं ना, वो अकेले रहने लगे हैं। बड़ा अंतर है। पढ़ा लिखा आदमी समूह नहीं बनाता है ना, बेवकूफों ने बना रखी हैं पार्टियां, है ना। चलो फिलहाल कंपाउंड दैट इज संघात। जब भी हम आपसे इधर उधर बात कर रहे होंगे तो समझ लो आपको मैं टर्म याद करवा रहा हूं, ठीक ना। कंपाउंड इज संघात। देयर आर टू टर्म। और जो बच्चे हिंदी लिखना जानते हैं ना, तो जब मैं हिंदी टर्म बोलूं ना, तो आप लोगों से एक बार हिंदी में लिखो, ठीक ना। फर्स्ट इमेज जिसकी बन जाएगी ना, तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। और एक बार तो बात समझ ही लो, वैसे क्वालिफाई तो हिंदी करना ही पड़ेगा सबको ना। आदत छूट गई है, क्लास 2, 3, 4, 5 तक लिखते रहे, फिर बच्चे हिंदी लिखने में बड़े ही कमजोर हो जाते हैं। तो दिस टेक्निकल टर्म इज संघात। दिस टेक्निकल टर्म एक बार लिख लोगे ना, दिमाग में इमेज बन जाएगी चीजों की, ठीक ना। स्वभाव यानी एलिमेंट्स का अपना स्वभाव है। दे इंटीग्रेट विथ ईच अदर, वो खुद से जुड़ जाते हैं। इफ दिस थ्योरी कन्वर्ट इन थ्योरी, सो दिस टेक्निकल टर्म इज स्वभाववाद, ठीक ना। आगे जोड़ दिया स्वभाववाद। एक साथ लिखो तो एक ही भी रह जाएगा, ध्यान रखो। इंग्लिश में लिखा दिस इज नेचुरलिज्म, दिस इज नेचुरलिज्म। If we call this is the theory, so this theory is called संघातवाद। यूपीएससी में से लिख के आ जाता, ध्यान रखो। What is संघातवाद? What is स्वभाववाद? संघातवाद and स्वभाववाद, this is the theory which is presented by चारवाक. This theory completely based on materialistic aspect. बस जैसे टर्म चलेगा वैसे समझाने लगो। So this is स्वभाववाद, इसको नेचुरलिज्म भी लिख सकते हो, ध्यान रखो। अब एलिमेंट ये खुद से जुड़ रहे हैं, अभी क्रिटिसाइज करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। फिलहाल तो चार बाकी बात समझते। बोले एलिमेंट्स इंटीग्रेट विथ ईच अदर, दिस इज द नेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब नेचर है जुड़ने का ना, मान लो मेरा नेचर है इससे जुड़ने का, तब तो मैं इससे दोस्ती कर लूंगा। मजा नहीं आया इसके साथ दोस्ती करके, अरे हटाओ, चलो इससे दोस्ती कर लेते। जुड़ने का तो नेचर है हमारा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा इससे जुड़ना, तो मैं इससे जो दोस्ती कर ली। नहीं मजा आया तो मैंने इससे दोस्ती कर ली। सो देयर इज फिलॉसफी। अगर ऐसे चलाना
So this is the accidentalism. तो एक फिलॉसफी बन गई ये भी कि जब एलिमेंट खुद से जुड़ रहे हैं, क्यों खुद से जुड़ रहे हैं? कोई कंट्रोलर नहीं ना पीछे से। आज इससे दोस्ती, कल उससे दोस्ती, इसको छोड़ा फिर किसी तीसरे से दोस्ती, कोई देखने वाले नहीं, कर क्या रहे हो साहब। तो टेक्निकली चारवाक फिलॉसफी है, चारवाक स्वभाववाद है, संघातवाद इज कॉल्ड एक्सीडेंटलिज्म। ठीक ना, टर्म बन गया पूरा। दिस इज नेचुरलिज्म, संघातवाद एंड एक्सीडेंटलिज्म। हिंदी में बड़ा कठिन शब्द, तो आप हिंदी मत लिखना। इसको बोलते हैं हिंदी में यादृच्छा या आकस्मिकता। प्रोबेबिलिटी बोला जाता है इसे हिंदी में ना, सॉरी इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, हिंदी में उसे बोलते हैं यादृच्छा। सिक्का उछाला, हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पासा फेंका, डाइस फेंका, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? कुछ भी हो सकता है। तो फिर तो अगर नेचर पर डिपेंड हो गए ऐसे ना, इफ देयर इज नो रेगुलेटर देन देयर इज नो कंट्रोलर, सो एक्सीडेंटलिज्म इज पॉसिबल। तो कितने पॉइंट बन गए? चारवाक वर्ड थ्योरी इज कॉल्ड स्वभाववाद, दिस वर्ड थ्योरी इज कॉल्ड संघातवाद, चारवाक फिलॉसफी इज कॉल्ड एक्सीडेंटलिज्म। तो कोई भी टर्म लिखा हो सकता है, ध्यान रखो। क्लियर? इफ these elements are integrated with each other by accidentalism, by naturalism, so there is no requirement of any efficient cause. जब ये खुद से जुड़ रहे हैं एलिमेंट ना, तो किसी जोड़ने वाली जरूरत नहीं ना। सामान्य तौर पर अभी कोई चीज बनानी होती है तो विधि लेके चलते हैं भाई। अगर कोई चीज बनानी है ना तो इफिशिएंट कॉस्ट चाहिए ना। पहले समझते हैं ये टर्म क्या होता है। वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। मैंने क्या शुरू किया था कि मान लो कि आपको कुर्सी बनानी है, नहीं बनानी, चलो बनवानी है। कहोगे सर मैं नहीं बना सकता। मान लो कुर्सी बनवानी है, तो आपने कारपेंटर को बुलाया, आपने कहा कि देखो मुझे कुर्सी बनवानी है। एग्जाम्पल समझना, फिलॉसफी अपने आप शिफ्ट हो जाएगी उस पर। बोले साहब बन जाएगी कुर्सी, कोई बात नहीं है, मुझे पैसा दो, मैं लकड़ी ले आता हूं। ठीक है पैसा ले जाओ। आपने पैसा दे दिया उसे, वो लकड़ी ले आया। तो अकेली लकड़ी तो नहीं लेकर आया, वो काटने के लिए अपनी आरी भी लेकर आया ना, जैसे काटता है कटर। वो जोड़ने के लिए कीलें भी लेकर आया ना, है ना। अभी यहां टर्म शिफ्ट कर देंगे। तो जो बनाने वाला है दैट इज इफिशिएंट कॉज। इफिशिएंट कॉज इन रियलिटी दैट कॉज who convert matter to form. Efficient cause एक ऐसा cause होता है जो कि मैटर को आकार देता है। Would convert in chair. तो efficient cause तो इसके पास है ही नहीं। समझना जरा क्या प्रॉब्लम होगी आगे जाके। फिर फिलॉसफी में क्या है, सामान्य तौर पर इफ देयर इज ए वर्ल्ड, तो जो लोग गॉड को मानते हैं ना, तो गॉड को एक efficient cause मान लेते हैं। समझो जरा पॉइंट। दोज हु बिलीव इन गॉड दे कंसिडर गॉड क्रिएट्स दिस वर्ल्ड। गॉड का मतलब ये होता है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। गॉड क्रिएट दिस वर्ल्ड, सो दिस इज सृष्टि। गॉड कंप्लीट डिसॉल्व दिस वर्ल्ड, दिस इज प्रलय। क्लियर? जब ईश्वर बनाएगा ना तो कहलाएगी सृष्टि, क्रिएशन। जब उसे नष्ट कर देगा ना तो कहलाएगा प्रलय। भगवान से नाराज हो जाते हैं, डांस करने लगते हैं, तांडव, सब कुछ नष्ट कर दिया, प्रलय। इसका ही बड़ा अच्छा मीनिंग होता है, ध्यान रखो। समझाएंगे, बहुत सिंबॉलिक है अपनी पूरी जो थॉट प्रोसेसिंग है। फिलहाल अब जो कारपेंटर जो आया, अब वो लेके तो आ गया लकड़ी। अब देखो अपने आप पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे आपको। लकड़ी लेकर आया, मैटर लेके आया। उसने कहा कि साहब कहां बनाए चेयर? आपने कहा जगह तो है ही नहीं मेरे पास, देयर इज नो स्पेस। तो हम सुनाएगा, दो चार बातें सुना दे। साहब जगह नहीं थी तो मुझसे लकड़ी मंगाई क्यों? स्पेस इज मीडियम फॉर
इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। भाई स्पेस वो जगह होती है जहां चीजें जुड़ेंगी और जहां टूटेंगी। मैटर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? क्या होता है मैटर? हाँ फिलहाल चलो इंटीग्रेशन टर्म में जो जुड़ता है और टूटता है, विच इज लायबल टू इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, दैट इज मैटर। वो लकड़ी जुड़ेगी, वो लकड़ी टूटेगी, तो बेचारे के पास मैटर तो है। अब क्रिटिसाइज करें इसी पॉइंट को। बट इफ देयर इज नो स्पेस, स्पेस इज रिक्वायर्ड। So Charvak philosophy completely forget, without space integration disintegration not possible। भाई वो कारपेंटर आया सिर्फ क्या उस लकड़ी को जोड़ता ही है क्या? उसे काटता भी तो है। इधर चारवाक फिलॉसफी, अभी मैनेज कर दूंगा, समझ लेना आप चीजों को, ठीक ना। इसने कहा जुड़ना, संघात, कंपाउंड, तो इंटीग्रेशन इज नॉट सफिशिएंट, डिसइंटीग्रेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। वो कट कर रहा है ना, ये भी जरूरी है ना। तो बेचारा चारवाक भूल गया, उसके पास जगह तो है ही नहीं। तो एक क्रिटिसिज्म सीधा सीधा सा कि इफ देयर इज नो स्पेस सो संघात इज नॉट पॉसिबल। इफ संघात इज पॉसिबल बट चारवाक फिलॉसफी ओनली बिलीव इन संघात, then integration cannot be definable by संघात। भाई इंटीग्रेशन हो गया, लकड़ियां जुड़ गईं, और जरूरी नहीं हो तो उसे काटना भी तो पड़ेगा, लेकिन बेचारे के पास तो जुड़ना ही है, टूटना तो है ही नहीं। जबकि वर्ल्ड थ्योरी में क्या होगा? हमेशा टूटना भी होगा और जुड़ना भी होगा, तो बेचारे पास टूटना तो है नहीं, बिकॉज टेक्निकल टर्म इज संघात। लोगों ने और खींचना शुरू किया चारवाक के इस पॉइंट को। अब सपोज दैट कि इफ दिस मैटर हैज नेचर एंड इट्स मैटर हैज कंपाउंड नेचर। अब इस मार्कर में भी जुड़ने का नेचर आ गया, तो सोच के देखो क्या होगा। ये जुड़ गए, अब हम भी मैटर हुए तो हम भी जुड़ गए, अरे ये भी मैटर हुआ तो ये भी जुड़ गया, एवरीथिंग कंप्लीटली कन्वर्ज एज ए मास। इफ देयर इज कंपाउंड थ्योरी, तो जुड़ के तो सब, अब सोचो बेचारा कारपेंटर लकड़ी लेके आया और लकड़ियां सब जुड़ गई आपस में, फिर तो चेयर बनेगी नहीं ना। इफ देयर इज नेचर, दैट नेचर इज संघात। तो बेचारा भूल गया ये कि जुड़ गए तब क्या होगा, तो एक तोड़ने वाला चाहिए ना, काटने वाला चाहिए ना। तो इफिशिएंट कॉज जो होता है, ध्यान रखो, efficient cause in reality that cause which has potential to integration and disintegration। तो फिलहाल जो लोग गॉड को मानते हैं तो गॉड हो जाता है, तो फिलॉसफी में जरूरी नहीं होता है गॉड को ही माना जाए। हमेशा पूरी फिलॉसफी के लिए याद रखना ये पॉइंट। इफ देयर इज गॉड, यदि गॉड होगा, गॉड वाले पॉइंट को हमेशा कंपेयर किया करो लाइक ए पॉटर, ठीक ना। पूरी फिलॉसफी में चलेगा ये, चाहे इंडियन हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे आपका रीजन फिलॉसफी हो। तो गॉड कंपेयर लाइक ए पॉटर। इफ देयर इज ए पॉटर एंड पॉटर क्रिएट या डिजाइन ए पॉट, देन पॉटर हैज पर्पस, ठीक ना। मान लो पॉटर एक घड़ा बना रहा है या कोई चीज बना रहा है, तो बनाने के पीछे उसका पर्पज होता है ना। भाई वो कारपेंटर के पीछे, बनाने के पीछे पर्पज है ना, कि उसे कुर्सी बनानी, कि मेज बनानी। क्लियर पॉइंट। इफ देयर इज एफिशिएंट कॉज, देन एफिशिएंट कॉज हैज ए पर्पज। क्लियर पॉइंट सभी को। अब इस चारवाक के पास तो एफिशिएंट कॉज है ही नहीं ना, तो इसके पास इस वर्ड का कोई पर्पस तो होगा ही नहीं। ध्यान रखो, चारवाक फिलॉसफी बिलीव इन एक्सीडेंटलिज्म, दिस इज द नेचुरलिज्म। इन दिस नेचुरलिज्म देयर इज नो पर्पस। इफ एनीवन बिलीव इन गॉड, दे कंसिडर दिस वर्ल्ड इज
पर्पसफुल। एक समस्या ये भी है इस फिलोसफर के पास। अब ध्यान रखो पूरी फिलोसॉफी में अगर गॉड आया तो ठीक, बट ए लॉट ऑफ फिलोसॉफी लाइक ए लॉट ऑफ सब्जेक्ट जैसे लाइक साइंस नॉट बिलीव इन गॉड, बट दे बिलीव इन साइंटिफिक थ्योरी लाइक डार्विन नॉट बिलीव इन गॉड, बट डार्विन बिलीव इन डेवलपमेंट थ्योरी। अगर गॉड नहीं मान रहे हो ना तो कोई थ्योरी मान लो तो भी काम चल जाएगा। जैसे फिजिक्स क्या करती है, मोशन एंड फ्रिक्शन दो चीजें होती है उसके पास। अगर उसने जुड़ने का एट्रीब्यूट मोशन से दिखाया ना तो फ्रिक्शन भी तो है काटने के लिए उसके पास। बट चारवाक फिलोसफी नॉट बिलीव इन गॉड, नॉट बिलीव इन थ्योरी विच प्रॉपरली डिफाइन दिस वर्ल्ड। क्लियर सभी को पॉइंट ये? अब एक बार मैनेज करते हैं फिर वापस आते हैं, फिर से वापस चलते हैं इस पॉइंट से। चारवाक वर्ड थ्योरी, ठीक ना, बात करते हैं कैसे आई। इन इंडियन फिलोसॉफी, if anyone philosophy define this word, then they based on 5 elements. These elements are earth, fire, water, air and space. But Charvak philosophy believe in materialism, so they believe in sense contact. So sense contact point of view, they believe in 4 elements: earth, fire, water and air. In Indian philosophy, those who believe in space, they believe in inference, but Charvak philosophy refute inference. So there are 4 elements for Charvak philosophy. After that, Charvak philosophy define nature of these elements. According to Charvak philosophy, we cannot believe in atomic form of these elements because atom cannot be perceptible. Atom is based on inference. So Charvak philosophy directly believe in compound realities. Compound reality is called Sanghat. By this Sanghat, Charvak philosophy define word theory. These elements integrated with each other by naturalism. This naturalism is accidentalism. If there is naturalism, so there is no requirement of any efficient cause. Clear? Line open करोगे, efficient cause in reality that cause which has potential to convert matter to form. But in this theory, these elements are sufficient for integration. Clear? Those who believe in God, they consider God create this world. But in this world theory, Srishti and Pralay both are necessary. But in Charvak philosophy, Charvak discuss only Sanghat. So Charvak philosophy not define another aspect of this world. And again, Charvak philosophy not believe in any theory. There are a lot of philosophies. They do not believe in God, but they believe in theory. So Charvak philosophy not believe in theory. क्लियर हो गया ना सभी को यहां तक पॉइंट? अब पहले तो इसकी पहले फिलॉसफी बता दी पूरी, अब इसको रिफ्यूट करना है आपको। तो अब इसके बाद जैसे जैसे पॉइंट आए ना वैसे रिफ्यूट करने लगो। तो फर्स्ट रिफ्यूटेशन आप समझ ही रहे हो कि भाई स्पेस नहीं मानना गलत हो गया। जैसे आपने स्पेस टाइम तो मीनिंग ओपन करनी पड़ेगी। स्पेस इज मीडियम फॉर इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन। इफ चारवाक बिलीव इन इंटीग्रेशन बट देयर इज नो स्पेस, सो चारवाक वर्ड थ्योरी इज नॉट एडमायरेबल फिलोसॉफी, एप्रिशिएबल फिलोसॉफी। अब थोड़ा आगे बढ़े पर आप चेंज करके साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इफ देयर इज ए मैटर and that matter is a compound, and every compound reality made of atoms. So this is scientific error in Charvak world theory. Clear? इसको भी क्रिटिसाइज कर दिया। फिर इसने टर्म रखा इफिशिएंट कॉज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो उसको क्रिटिसाइज करो। Efficient cause is required in philosophy. If anyone not believe in efficient cause, then theoretical aspect is necessary in philosophy. Because efficient cause has potential to create
anything otherwise that being dissolve that thing. Like example, भाई मान लो आप उस कारपेंटर से आपने चेयर बनवाई, बन गई चेयर, आपने कहा मजा नहीं आया तो उसने अपने कटर से ऊपर कैसा हटा दिया, स्टूल बन गया, मतलब ठीक है. चारवाक फिलॉसफी not believe in efficient cause. So disintegration aspect completely refuted by Charvak. So this is not acceptable. Efficient cause is necessary. ठीक ना, उसकी requirement create करो. If Charvak philosophy not believe in efficient cause, then this efficient cause replaces by any theoretical aspect, like evolution theory. But Charvak philosophy not believe in any theory. So चारवाक वर्ड थ्योरी कंप्लीटली रिफ्यूटेबल. क्लियर? तो आपका एक पार्ट बन गया कि चारवाक वर्ड थ्योरी को कैसे प्रेजेंट करता है और उसका क्रिटिसिज्म कैसे करता है. क्लियर सभी को पॉइंट? ये 3 ही पॉइंट है, ध्यान रखो इसमें सिर्फ, और क्रम से उठेंगे, ध्यान रखना. पहले तो मैटर, फिर मैटर का नेचर और मैटर को बनाने वाला, सीक्वेंस में रखना, ध्यान रखना. आपके पास जो बुक्स होती ना उनमें भी सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं होता है, ध्यान रखो. इसलिए मैंने कहा क्लास को एक बार ध्यान से सुन लेना, उसकी किताब से आप पॉइंट उठा लेना, छूट छाट जाए बस, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेक्चर के बाद आपके लिए किताब की. तो ये तो था इसकी वर्ड थ्योरी. अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, सोल एंड गॉड पर. हम आपको किसी भी किताब का जीरोक्स देते हैं ना तो उसमें कम ही होगा जितनी हम बात करेंगे आपसे, ध्यान रखना. इसलिए आप लेक्चर को प्रायोरिटी देना, उस सब चीजें आपको मैनेज करेंगे सब. अब देखो जरा सोल, तो ये तो सीधा सीधा नाराज हो जाएगा चारवाक. ये क्या कर रहे हो? अरे आई बिलीव इन मैटर, आई बिलीव इन सेंस कॉन्टेक्ट, but Indian philosophy defines soul. When you say soul, then you can say soul is eternal, permanent, one, absolute, immortal. But I cannot say anything exists in this world. Well, soul is not perceptible. If soul is not perceptible, so we cannot say there is soul. As a traditional thought. बोले जैसा कि ट्रेडिशनल थॉट में सोल को माना गया है, मैं उसको मानूंगा ही नहीं साहब. तो पहला तो पॉइंट उसने ही रख दिया. जो ट्रेडिशनल सोल का कॉन्सेप्ट है मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं. नहीं, चारवाक फिलॉसफी कंप्लीटली रिफ्यूटेड कॉन्सेप्ट ऑफ सोल विच इज प्रेजेंट, विच इज फाइंड इन इंडियन फिलॉसफी. क्लियर लास्ट तक सभी को ना? तो पहला तो पॉइंट उसका ही हो गया कि मैं साहब आत्मा को नहीं मानूंगा, कि साहब आत्मा तो मैं दिखती नहीं. हाँ, राम गोपाल वर्मा को भले ही दिख जाती हो, ठीक ना, मूवी बना देते हैं आत्मा, मूवी है ना उनकी आत्मा. हाँ, बोले आप कहना चाहते हो सोल को ना, तो बस इतना जान लो. अब सोल कह रहे हो तो बता देते हैं सोल होती क्या. उसने कहा बॉडी इज सोल, झंझट खत्म करो. उसने कहा, बोले साहब बॉडी इज सोल है. बोले बॉडी इज सोल. अब टर्म आ गया बॉडी, यानी उसको कैसे कहेगा? सोल इज नथिंग. There is no difference between body and soul. Both are identical. So I can say body is soul. उसने सीधा कर दिया body is soul. तो टेक्निकली ये टर्म बन गया क्या? जो बॉडी को बोलते हैं देह, सोल हो गया आत्मा. तो टेक्निकल टर्म ये देह आत्मा. यह देह ही है जो आत्मा बन गई है. देहात्मवाद, टेक्निकल टर्म इज देहात्मवाद. यानी बॉडी एंड सोल बोथ आर आइडेंटिकल. बोले साहब ये तो आइडेंटिकल ही हैं, ठीक ना. ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं, जुड़े हैं. बोले देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल. इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है. इन लोगों से पूछते साहब ये तो बता दो ये बॉडी होती क्या है. तो ये थोड़े पहले शुरू किया ना, इन फिलॉसफी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड वर्ल्ड. क्लियर?
तो चारक बताना शुरू करेगा, बॉडी इन रियलिटी मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स. These elements are earth, fire, water and air. These elements integrate with each other. Then we have a body. Clear? बॉडी तो बना ली उसने. तो लोगों ने उससे पूछा, साहब बॉडी तो है तुम्हारे पास, चलो सोल बोल दिया, लेकिन हम जो सोच रहे हैं ना, थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, साहब ये क्या बला है फिर? व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाट इज थिंकिंग? अरे बोले इसमें कोई समस्या है क्या? उसने अपना एग्जाम्पल लिया, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल उसने रखा. उसने कहा पान खाते हो ना? सामने वाले कहाँ खाते हैं पान भाई? उसने क्या क्या चीजें होता है? कत्था, पान, सुपारी, चूना, 4 चीजें होती ना, लीफ, बीटल, लाइम, नट. देयर आर 4 थिंग्स. इफ दे इंटीग्रेटेड, then you have new red color. Only this example properly define consciousness. Earth, fire, water and air integrated with each other, then they derived consciousness. Combination of 4 elements produce consciousness. बोले जैसे कत्था, पान, सुपारी, चूना खाते और मुंह में रखकर चबाते ना, तो एक स्पेशल रेड कलर निकलता है. बोले ना तो लीफ में है, ना ही बीटल में, ना ही लाइम में, ना नट में. बोले ना कॉम्बिनेशन जैसे हुआ ना, संघात बना नहीं था उसे पॉइंट को. इफ दीज एलिमेंट आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर, देन देयर इज अ न्यू क्रिएशन. दैट क्रिएशन इज कॉन्शियसनेस. बोले अगर आप समझना ही चाहे तो ये चेतना होती क्या है, तो चेतना तो इस कॉन्शियसनेस से ही निकल आती है. कल एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको याज्ञवल्क्य का. याज्ञवल्क्य ने कहा कि देखो भाई, ये सोचना समझना चल रहा है ना, ये सब खाने पीने से ही चल रहा है, मैटर से ही आ रहा है. अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलॉसफी, इफ एनीवन वांट टू नो व्हाट इज कॉन्शियसनेस, दिस कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम कंपोजिशन ऑफ 4 एलिमेंट्स. बोले कि अगर आप जानना ही चाहते हो कॉन्शियसनेस आई कैसे, तो उसने कहा कि ये कॉन्शियसनेस जो है कंपोजिशन ऑफ 4 एलिमेंट, यानी कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर. तो अभी सेंटेंस थोड़ा इंप्रूवमेंट करोगे. कॉन्शियसनेस विथ बॉडी इज सोल. इस लाइन को थोड़ा इंप्रूव कर दिया. क्लियर? तो जनाब लिख दी कॉन्शियसनेस विथ बॉडी इज सोल, यानी कैसे हटाना नहीं चाहता है. दिस कॉन्सेप्ट जो इसने बनाया, इसी कॉन्सेप्ट को नाम दे रहे थे देहात्मवाद. बोले चेतना के साथ जो ये शरीर है ना, बोले साहब यही तो आत्मा है. अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलॉसफी, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड देहात्मवाद. ये साहब कैसे कह सकते हैं कि इंडियन फिलॉसफी में क्या था, कॉन्शियसनेस अलग चीज होती है और बॉडी अलग चीज होती है अपनी इंडियन फिलॉसफी में. ये अपना इंडियन फिलॉसफी कहती है कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा बची रहती है, चेतना बनी रहती है, ऐसा माना जाता है अपने. तो चारवाक को तो लॉजिक देना अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए. नॉर्मली क्या इंडियन फिलॉसफी में कॉन्शियसनेस सोल परमानेंट फॉर्म में ली जाती है. देखो जब क्या रखा उसने पॉइंट चारवाक में, उसका कहना है कॉन्शियसनेस विथ बॉडी इज सोल, यानी कॉन्शियसनेस एंड बॉडी कैन नॉट बी सेपरेबल, बोथ आर आइडेंटिकल. फॉर दिस चारवाक फिलॉसफी प्रेजेंट एग्जाम्पल्स. इस पॉइंट को प्रूव करने उसने क्या किया, फिलॉसफी में ध्यान रखो अपनी बात को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल्स देते हैं लोग. उसने एग्जाम्पल्स रखा. बोले इफ एनीवन से आई थिन, आई फैट, मान लो कोई कहे कि मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, ठीक ना. उसने कहा देयर आर
a lot of experience. If anyone say I am thin, I am fat, then I and fat can be separable. Not separable ना, अपने पॉइंट पर आ गया वो. बोले if anyone say I am thin, then I and thin separable? Not separable. So you can say both are identical. अब मैं कहूं मैं मोटा हूं, तो मोटा करता रहो, मैं कहूं मोटा मोटा मोटा, तो भाई क्या क्लियर ही नहीं हो रहा, वो मैं तो लाना ही पड़ेगा ना उसके साथ. तो पॉइंट रखा, I and fat, I and thin cannot be separable. बोले दिस रिलेशन इज इन I का मतलब कॉन्सियसनेस से, वो थिन ये बोल रहा बॉडी के लिए यूज, यानी कॉन्सियसनेस एंड बॉडी कैन नॉट बी सेपरेबल. सो अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलॉसफी दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड देहात्मवाद. बोले देह को और आत्मा को अलग अलग नहीं कर सकते हो, ये दोनों तो एक ही होते हैं. तो अब चारवाक में जब मरेगा ना व्यक्ति, वो कहेगा मरना ही मोक्ष है. If any being attain death, then that is moksha. इसका कहना होगा मरना ही मोक्ष है. तो मरना ही मोक्ष है तो मोक्ष के पहले जो कुछ करना है कर लो. बड़ी मजेदार बात तक कहता था चारवाक. यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम. आईएएस के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से जरूर ये लाइन पूछी जाती, ध्यान रखना, याद कर लेना, लिख के दे देंगे आपको. वो कहता था जब तक जियो सुख से जियो. यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. ऋण लेकर चाहे घी क्यों ना पीना पड़े, ऋण ले लो. भस्मीभूत सही देह से, यह देह तो भस्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है. दिस बॉडी इज कंप्लीटली डिमिनिशेस आफ्टर सम टाइम. पुनः गमन कुता, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. सो यू कंप्लीटली एंजॉय दिस लाइफ. बड़ी पॉपुलर लाइन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं लाइन. बोले क्या है ये लाइन, उन्हें मजा आता है इस लाइन को सुनने में, ठीक ना. एक बच्चे से बड़ा अच्छा पूछा उन्होंने कि हाउ यू डिफाइन इन्वेस्टमेंट थ्योरी बाय दिस स्टेटमेंट. इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी है इसमें, देखो ध्यान से. तो इन्वेस्टमेंट क्या करते, उधारी तो ले रहे होते बदले अर्थों में, सब इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो. क्या है ये, यही तो है. किसी ने पूछा था ये, हाउ चारवाक फिलॉसफी डिफाइन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट. बजटिंग जो है वो घाटे का बजट ही तो होता है ना. यहां पर बहुत सारी अप्लाइड की छुपी होती है फिलॉसफी में, ध्यान रखो. वो ऋण लेकर घी पीने की बात कर रहा है, दारू पीने की बात नहीं कर रहा है भाई, कि 4 बोतल वोदका की बात कर रहा हो. ऐसा तो नहीं कहा ना उसने. उसने ये भी नहीं कहा कि ऋण लेके हम वापस नहीं करेंगे. लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से भी जा सकता है इस लाइन का. तो आप किसी भी पॉइंट में अच्छा ही बुराई दोनों ही खोज सकते हो. भाई ऋण लेकर घी पीने की बात कही उसने. मजबूत हो गए, हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी. मेक इन इंडिया से उधार ले लेते हैं, जापान से भी मजबूत हो जाएगी तो रिटर्न कर देंगे उन्हें. तो उधार ही तो ले रही है पूरी इंडियन इकोनॉमी. फिलहाल वापस आते हैं. इसका इसलिए कहना था कि बॉडी एंड कॉन्शियसनेस बोथ आर आइडेंटिकल. इफ एनीवन वांट टू नो व्हाट इज द मोक्षा, बोले मोक्षा इज नथिंग. ए बॉडी इज डेस्ट्रॉयड आफ्टर सम टाइम, दैट इज मोक्षा. बोले मरना ही मोक्ष है, ठीक ना. इसने कॉन्सेप्ट ही बदल दिया पूरा कि मरे ना तो चलो कुछ वापस नहीं होगा. अब इस कॉन्सेप्ट्स के कई सारे ड्रॉबैक हुए. देखें जरा क्या ड्रॉबैक हुए. इसने पूरी इंडिया की इथिक्स पर चोट कर दी, पूरी इथिक्स हिल गई इससे. अब सोच के देखो जरा, इंडियन कॉन्सेप्ट में सोल इज परमानेंट. अब इसी कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, सोल इज डिमिनिशेस. अपनी इंडियन फिलॉसफी कहती है कि सोल इज इटर्नल, जो ट्रेडिशनल थॉट है. इसने कह दिया कोई इटर्नल चीज है ही नहीं, परमानेंट है ही नहीं. अब देखो इसे कितने बैड इंपैक्ट निकलेंगे इस थ्योरी के. अब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पार्ट को.
According to Indian philosophy, soul is immortal, soul is eternal. आखिर इंडिया ने सोल को इटर्नल क्यों माना, इसके पीछे पर्पज है, ध्यान रखो। इंडियन फिलॉसफी में कोई भी चीज ऐसी नहीं इसका पर्पज ना हो, बिकॉज इंडियन फिलॉसफी डिफाइन इथिक्स। Indian philosophy define ethics. This ethical aspect based on karma theory. According to karma theory, if you participate in any action, then that action define what is fruit, what you attain. कर्मा थ्योरी क्या कहती है, जैसा करोगे ना वैसे तो फ्रूट मिलना है आपको। अगर आपने किया है तो आपको फल जरूर मिलेगा, अगर नहीं किया है तो आपको फल नहीं मिलेगा। बट इन दिस कर्मा थ्योरी वी फाइंड कंट्राडिक्शन इन प्रैक्टिकल लाइफ। There are a lot of persons. They completely participate in bad actions, bad activities, but they completely enjoy this life. करोड़ों के घोटाले करे बैठे ना, फिर बड़े मजे से जी रहे हैं। जबकि थ्योरी कह रही जो जैसा करेगा उसे वैसा का फल मिलेगा। तो इस लाइन को ठीक करना था ना। सो इंडियन फिलॉसफी सेज दिस प्रेजेंट लाइफ इज नॉट सफिशिएंट। ये जान लो आपको अपने कर्म का फल मिलेगा ही, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मिलेगा। ये जो करप्शन करके बैठे हैं ना, गलत करके बैठे हैं ना, अपनी इंडियन फिलॉसफी कहती है इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में कुत्ता बन जाएंगे, ये सब बैल बन जाएंगे, गधा बन जाएंगे, मिलेगा जरूर इन्हें फल। तो इस पॉइंट को डेराइव करना था। इसलिए इंडिया कहती है शरीर से अंतर नहीं पड़ता है, जो आत्मा है ना वो तो वही रहती है। इफ सोल इज वन, इस बॉडी में आपने बुरे कर्म किए, इस बॉडी को नहीं मिला फल, लेकिन सोल तो वही चल रही ना। In next life you attain this fruit. So Indian philosophy ethical point of view believe in immortality. ये जरूरी था कॉन्सेप्ट। If Indian philosophy manage a social order, if Indian philosophy manage a ethical order, then eternal soul concept is required. अगर लोगों को ये भरोसा हो जाए कि जो है बस यही एक पल है, ना आगे ना पीछे, तब क्या है, इसकी कार उठा के भाग ही लेते हैं फिर तो। अगर इंसान को ये लगे कि यही जीवन ही एकमात्र जीवन है, तो जो चाहे सो करेगा वो। अगर उसे थोड़ा सा भी लगे कि हम जो कर रहे हैं ना उसका फल हमें जरूर मिलेगा, अभी नहीं तो कुछ समय बाद मिलेगा। अगर इंसान को ये नहीं लगा कि गुड डीड ऑलवेज डिफाइन गुड फ्रूट, इफ ह्यूमन बीइंग थिंक बैड एक्शंस डिफाइन गुड फ्रूट, सो देन ethical theory completely convert this manner. So this is required. We properly manage this theoretical aspect. Charvak philosophy completely refute eternal soul concept. So Charvak ethical aspect completely refute ethical aspect.
अगर सोल को नहीं मानेगा ना, वो इटर्नल सोल कॉन्सेप्ट को नहीं मानेगा, सोल तो माना, उसके लिए बॉडी हो गई वो तो फिलहाल, अगर इटर्नल सोल को नहीं मानेगा ना, तो चारवाक फिलॉसफी नॉट बिलीव इन इथिक्स कॉन्सेप्चुअली, वो इथिक्स को नहीं मानेगा, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन चारवाक फिलॉसफी, बिकॉज सोल इज नॉट परमानेंट. सो चारवाक फिलॉसफी नॉट बिलीव इन कर्मा थ्योरी. तो कितने बैड इंपैक्ट आते हैं. इफ चारवाक फिलॉसफी नॉट बिलीव इन इथिक्स, नॉट बिलीव इन कर्मा थ्योरी, देन ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली कन्वर्ट इन सेल्फिशनेस. मैंने समझाया ना आपको फर्स्ट लेक्चर में, इफ देयर इज सेल्फिशनेस, देन ह्यूमन थॉट प्रोसेसिंग कंप्लीटली कन्वर्ट इन इंडिविजुअलिज्म. अगर इंसान अपने लिए जी रहा है, सेंस एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग, then morality and ethics completely suppressed by few selfish persons. If individual being completely selfish, then we have no good society. If there is no good society, then we have no good nation. So this is the bad impact of Charvak philosophy in ethical point of view. इसका bad impact ये पढ़ना था. तो एक तो इसको इथिकली क्रिटिसाइज किया कि इस पॉइंट में ये समस्या है. फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर लॉट ऑफ कंट्राडिक्शन इन चारवाक फिलोसफी. अब फिलोसफी से पकड़ लिया इसको, बोले इथिकली तो क्रिटिसाइज होगा ही होगा ये इसका कॉन्सेप्ट, फिलोसफिकली भी क्रिटिसाइज करना कैसे. अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलोसफी, व्हेन चारवाक फिलोसफी सेज एलिमेंट्स derived consciousness, ये होगा ना, element derived consciousness, but these elements are unconscious. element तो unconscious है ना, matter है वो, elements are matter and these matters are unconscious. If elements are unconscious, then unconscious elements interact with each other and they derive consciousness, the scientific error. This is the scientific mistake. कैसे भाई, समझो जरा. फिजिक्स पढ़ते रहे, खूब पढ़ी फिजिक्स, पेपर देने पहुंच गए केमिस्ट्री का, पूरे फेल हो गए साहब. और ये भाई जब उसमें पोटेंशियलिटी नहीं पास कराने की फिजिक्स से केमिस्ट्री में, तो भाई इफ एलिमेंट्स आर अनकॉन्शियस, देन अनकॉन्शियस कैन नॉट डेराइव कॉन्शियसनेस. दिस इज द साइंटिफिक मिस्टेक, दिस इज लॉजिकल मिस्टेक. ये तार्किक तौर पर ही ठीक नहीं होता है कि अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस को डेराइव कर ले. इतनी देर से खड़े होकर लेक्चर ले रहे, ये कुर्सी कह सकती सर बड़ी देर से खड़े बैठ जाओ सर, नहीं कह सकती ना. Unconsciousness cannot derive consciousness. Consciousness derived unconscious things. I want, then चाहे तो हम इसे मूव कराएं. तो this is the scientific error in चारवाक philosophy. Clear? तो बेचारे के पास ना तो philosophy और ethically तो ब्लंडर कर ही डाला उसने. Clear? So according to चारवाक, if चारवाक philosophy is देहात्मवाद, so देहात्मवाद concept is refutable philosophical point of view and ethical point of view. So ethics के point of view बेचारा है बड़ा ही कमजोर है, ethics से भी कमजोर है और philosophy से तो कमजोर है ही बेचारा. ठीक ना. तो ये तो था इसका concept of soul. जो आप कंटेंट दिया ना उसमें थोड़ा बहुत ही कम होता है. जो आपके पास दिया तो शायद आप आगे पढ़ भी लिया हो, किसी बच्चे ने नहीं माना होगा मन. मैंने मना तो किया था नहीं पढ़ना, इन बच्चे नहीं मानते हैं. पढ़ ही लिया होगा किसी ने. अब लेक्चर के बाद अब पढ़ना पूरा जाके उसे, ठीक ना. आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकोगे, एक कोई भी चीज़ डाउट में नहीं आई. मना अगर हम आपसे कर रहे हैं ना तो कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, ठीक ना. आप पकड़ लो, इस किताब में भी सीक्वेंस में नहीं लिखा है. मैं आपको कोई भी किताब का जीरोक्स दे दूँ, चाहे कोई भी किताब हो ना, तो ये ध्यान रखना है कि हमें टीचर कह रहा है ना, कोई तो वजह होगी, बस इतना समझो. मना नहीं करूँगा कोई भी किताब पढ़ने से, लेकिन थोड़ा वेट करके पेशेंस रखना है आपको.
उसके पीछे रीजन होगा। मैं तो मना ही नहीं करूं किताब पढ़ना, आप लोग थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना। खूब किताबें पढ़ो, किताब बुक्स तो सबसे अच्छा कंपेनियन है आपका होल लाइफ। टीचर तो आपके साथ 3 महीने 4 महीने रहेगा, बुक्स आपके साथ हमेशा रहने वाली हैं। लेकिन बुक्स को पकड़ने का, पढ़ने का एक तरीका जान लो, बस आप लोग चीज़ें पकड़ना सीख जाओगे। देखें जरा नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी ऑफ वर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। तो वर्ड थ्योरी उसने मानी, लेकिन उसकी थ्योरी में बहुत सारी फॉल्ट थी। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल माना, उसमें बहुत सारे फॉल्ट थे। अब आया गॉड, अब तो बेचारा गॉड आ गया। तो पहले तो समस्या उसकी वही है, हे ईश्वर तुम दिखते ही नहीं हो मुझे। ठीक ना, पहला रिफ्यूटेशन तो ही हो गया, अपने आप ही पकड़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलोसॉफी, दे बिलीव इन मेटलिज्म, मेटलिस्टिक थॉट कंप्लीटली। अपने आप लाइनें चल रही ना, मेटलिस्टिक थॉट बिलीव इन सेंस कॉन्टेक्ट, और सेंस पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्टेक्ट इज नॉट पॉसिबल विद गॉड। सो चारवाक फिलोसॉफी नॉट बिलीव इन गॉड। If anyone believe in God, they consider God is beyond sense. God is transcendental reality. So Charvak philosophy not believe in beyond sense reality. So transcendental reality is not acceptable. अपने आप लाइनें बढ़ जाएंगी ना, खेलना सीख जाओगे अपने आप ही, कोई दिक्कत ही नहीं। पहली लाइन आएगी, अपने आप दूसरी लाइन अपने आप चलेगी। हर चीज के पीछे एक लॉजिक चल रहा है। उसने जैसे ही कहा कि आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, तो लाइन लाएगा, क्यों नहीं मान रहे हो साहब? क्योंकि साहब हम तो भौतिकतावादी हैं, मेटलिस्टिक है। बोले मेटलिस्टिक करता क्या है? बोले मेटलिस्ट तो सेंस कांटेक्ट मानता है। बोले कांटेक्ट, बोले कांटेक्ट तो ही ना गॉड से, सेंस कांटेक्ट विथ गॉड, ये तो लाइन ही नहीं बन रही हमारी। सेंस कांटेक्ट विथ मैटर तो बन जाएगा, सेंस कांटेक्ट विथ गॉड तो बनेगा ही नहीं, बिकॉज चारवाक फिलॉसफी बिलीव इन सेंस कांटेक्ट। अब सेंस कांटेक्ट बियॉन्ड रियलिटी ट्रांसेंडेंटल, सो चारवाक फिलॉसफी नॉट बिलीव इन ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। इसलिए सोल को भी नहीं मानता था वो, सोल भी उसकी सेंसेस में नहीं आ रही थी। So according to Charvak philosophy, I cannot believe in soul and God because soul and God both are transcendental realities. Clear? गॉड को तो नहीं मानना। बोले आप देखते हो तुम किन किन बेस पर गॉड को मानते हो। ये 2 पॉइंट याद रखना, पूरी फिलॉसफी में काम आएंगे आपके। अब जो मैं बात कर रहा हूं, जो लोग गॉड को मानते हैं वो 2 वजहों से गॉड को मानते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी एक ही वजह मानकर चलती है, वो एक वजह होती है वर्ल्ड थ्योरी। जैसे तो आप इस पॉइंट जानते ही हो, गाना भी सुनागा, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ठीक ना। तो उस गॉड ने दुनिया बनाई, इस ईश्वर की महत्ता इसलिए उसने दुनिया बना दी। तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं, इसलिए मानते हैं उसने दुनिया बनाई, बेचारे फिर इस बात से बड़े दुखी होते कि ऐसी दुनिया क्यों बनाई। क्वेश्चन मार्क भी कर दिया, काहे को दुनिया बनाई। मान रहा है ईश्वर ने बनाई है, लेकिन क्वेश्चन मार्क कर रहा है काहे को बनाई। फिलहाल गॉड को जानने का आधार होता है वर्ल्ड थ्योरी, और बेचारे जो इथिस को मानते हैं, कर्मा थ्योरी को मानते हैं, उनके पास एक पॉइंट और होता है, गॉड डिफाइन इथिक्स। अब देखें जरा, तो आप दोनों ही पॉइंट जानते हो फिलहाल, तो बस उन्हें एलोबरेट करते हैं। According to Charvak philosophy, this word theory not defined by any efficient cause. ठीक ना, गॉड का मतलब efficient cause हो गया, ध्यान रखो। ये ध्यान रखो, जब ये टर्म चलेंगे सीक्वेंस में आ जाते हैं अपने आप ही। गॉड टर्म लिया नहीं कि अपने आप efficient cause टर्म आ जाएगा साथ ही उसके साथ। तो efficient cause आया, टर्म ओपन होगा अपने आप ही। क्लियर तो करो क्या है, efficient cause is potential cause। Potential cause, if anyone has potential and if that being create anything, then there is a purpose। ठीक ना, यदि कारपेंटर है बनाने वाला, क्लियर, तो बनाने वाला है तो कोई चीज बनाने वाला तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो क्यों बना रहा है ना, पर्पस। तो अपने आप टर्म आगे बढ़ जाएगा, इफ देयर इज एफिशिएंट कॉज दैट एफिशिएंट कॉज पोटेंशियल, तो अपने आप ही लाइन आगे मूव करती है। Then there is a purpose।
है ना. If anyone believe in God, they consider God creates this world. Few persons believe God designed this world. ठीक ना. फिलहाल हम लोग जो गॉड को मानते हैं, फिलहाल उनका टर्म होता है गॉड क्रिएट्स दिस वर्ल्ड. अगर क्रिएट की गई है कोई चीज तो हमेशा ध्यान रखो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, तभी क्रिएट की गई, यानी उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज होगा. तो पर्पज को फिलॉसफी की भाषा में कहा जाता है टेलियोलॉजिकल. टेलियोलॉजिकल टर्मिनिटी मेड ऑफ टेलियोस. टेलियोस का मतलब होता पर्पस. लाइन आगे बढ़ेगी. टेलियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, गॉड क्रिएट्स दिस वर्ल्ड. किसी उद्देश्य के तहत ही ईश्वर ने संसार को बनाया. तो अपने आप क्वेश्चन मार्क हुआ, सर वो उद्देश्य क्या था. लाइन आगे बढ़ेगी ना. अगर मैंने कहा टेलियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इफिशिएंट कॉज क्रिएट दिस वर्ल्ड, देन व्हाट इज द टेलियोस, व्हाट इज द पर्पस. So those who believe in teleological aspect in God, so they say happiness for creatures. Happiness for creatures, God created this world. अरे इन संसार के प्राणी को सुख देना था इसलिए संसार बनाया. इस लाइन में ही बड़ी गलती है. जो कुछ था ही नहीं तो किसको सुख देना चाहता था वो. अपने आप पकड़ने लगो लाइन. आपने ध्यान अभय शर्मा ने आपको ट्रांसलेशन में कहा था फिलोसॉफी में खासियत होती आगे की लाइन अपने आप पकड़ने लगोगे तो क्रिटिसिज्म बन जाएगा. अपने आप ही जो पकड़ रहे होगे ना वही क्रिटिसिज्म हो जाएगा उसका. फिलहाल तो हैप्पीनेस फॉर क्रीचर्स, वो बेपासा उस वाला क्रीचर मत समझना. पहले तो उस मूवी का नाम क्रीचर था तो मेरे दिमाग में ऐसा नाम क्यों रख दिया मूवी का क्रीचर. क्रीचर तो सभी हो गए भाई. चलो फिलहाल पता नहीं क्या सूझा उस डायरेक्टर को, बेवकूफ रहा होगा. ठीक ना. ऐसे टर्मों को ऐसे अपने हिसाब से क्वाइन करते हैं ना. आजकल ना वर्ड आते हैं ना सेंटेंस आते हैं, जो मन में आता सो रख देते हैं. चलो फिलहाल वो उनकी समस्या है. विचारों की बहुत ही शून्यता हो गई है लोगों के पास, बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं थॉट से. फिलहाल हैप्पीनेस फॉर क्रीचर्स, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड. तो जो ईश्वरवादी थे उनकी बातें सुनी चारवाक ने. अब उनके पहले काटेगा, पहले तो उनकी बात सुन लेगा ना. अच्छा तो उसने कहा देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गॉड. दिस वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी efficient cause. This world in reality made of 4 elements and these elements integrate with each other by concept of संघातवाद, by concept of naturalism. अपना पॉइंट ले आया. Well, if anyone say there is a purpose for this world, well, in this world we cannot find any purpose. There are a lot of problems in this world. Then how we can say this world is created by a rational being? There are a lot of irregularities. There are a lot of problems in this world. Then how we can say God created this world as a rational being? अपने आप पॉइंट आगे आ जाएंगे. आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना. ये सेंटेंस बार बार फिलोसॉफी में आएंगे, यही आएंगे बार बार, तो याद हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है. ठीक ना. रटना नहीं, लेकिन उन पॉइंट को समझना है आपको कि लाइन अपने आप ही क्यों बढ़ रही थी. अपने आप आएगा पॉइंट. वही जो वर्ड थ्योरी थी ना उठा के रख देनी, उठा के सीधे यहां पर. बस पहले तो ये बता देना है कि दोज हु बिलीव इन गॉड, तो उन्होंने गॉड को क्यों बताया, पहले उसका पॉइंट रखा. फिर चारवाक का रिफ्यूटेशन आएगा अपने आप ही. तो पहले तो बता दिया दोज हु बिलीव इन गॉड दे कंसिडर गॉड क्रिएट दिस वर्ल्ड. If there is a creator, then that creator is efficient cause. Clear? If there is efficient cause, then efficient cause has potential. Potential cause convert matter to form. If there is a potential cause, if there is efficient cause, then God creates, then there is a purpose. So you define what is the purpose. Those who believe in God, they consider happiness for creatures. God creates this world.
But Charvak philosophy oppose this type of thought which is presented by those who believe in God. Only there is no requirement of efficient cause. Only these elements, this world in reality made of 4 elements. They integrate each other by naturalism. If there is naturalism, so there is no requirement of any teleological purpose, a teleological aspect. जब नेचर ने खुद ही डिफाइन कर दिया है तो पर्पस रहा कहां? If there is naturalism, so there is no purpose. So Charvak philosophy refute concept of God. बोले if anyone think there is a purpose for happiness for creatures, but we cannot find there is a purpose for this world. तो उठा के रख दो समस्याएं, कितनी समस्याएं हैं, तो कहाँ ईश्वर बुद्धिजीवी रहा अकॉर्डिंग टू चारवाक, ठीक ना? ए लॉट ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे गॉड को पर्पसफुली बताएंगे, पढ़ेंगे आप लोग आगे जाके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में। अब रही बात इथिक्स की, तो इस लाइन को खींच सकते हो। इंडियन फिलोसॉफी बिलीव इन इथिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। वही पॉइंट रिपीट हो गया पूरा का पूरा। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इन रियलिटी इटर्नल soul concept, but Charvak philosophy not believe in eternity. If again Charvak philosophy criticize, if anyone think ethics, morality, karma theory, and this karma theory preserved by God, protected by God, only this is only mental illusion. These terminology coined by few selfish person for their vested interest. They enjoy life completely, so they define karma theory, so they define concept of pure soul, but they enjoy their life. भाई उन्हें तो अपनी जिंदगी जीनी थी, तो कर्मा थ्योरी बना दी, प्योर सोल कॉन्सेप्ट बना दिया। देखो भाई, आपने पिछले जन्म में बहुत सारे बुरे कर्म किए थे, आपकी आत्मा है जो अशुद्ध हो गई है, प्योर करो इसे। अब प्योर कैसे हो? बोले अब कर्मकांड करो जो मैं बता रहा हूं। बोले इथिकल एंड मोरलिटी डिफाइंड बाय फ्यू पर्संस। बोले आप बड़े दुखी होगे, परलोक में जाओगे। अरे इन लोगों ने बना दिए साहब, हेवन, हेल, परलोक, गोलोक, these concepts in reality coined by few selfish person. बोले जिससे कि इनका काम चलता रहे। तो चारवाक फिलॉसफी कंप्लीटली बोले ये सब मेंटल इल्यूजन है। इफ यू थिंक these illusion preserved by any preserver, so that is great illusion also. बोले साहब ये सोचते हो कर्मा थ्योरी की कोई हिफाजत करता है? बोले साहब हिफाजत नहीं करता है, वो उसकी रखवाली नहीं कर रहा है साहब। जब कोरी मेंटल इल्यूजन है तो उसको डिफाइन करने वाला तो उससे बड़ा इल्यूजन होगा ना। सो अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलॉसफी, ethical point of view, if anyone believe in God, so ethics is not required in life according to Charvak philosophy. You completely enjoy this life. According to Charvak philosophy, ethics is not required. So Charvak refute concept of God on the basis of ethics, because those who believe in ethics, they consider God preserve this ethics. So Charvak philosophy refute concept of God. हो गया आपका सेकेंड टॉपिक। कोई बोझ था क्या? बस अब यही टॉपिक डेवलप होने लगेगा। एक बार ब्रीफिंग करते हैं, फिर आप एक रेस्ट करोगे थोड़ी देर 5-7 मिनट का, और फिर से आप लिखोगे, ठीक है? लिखने से पहले आज हम कुछ बताएंगे आपको कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं और आप उससे सीखोगे, ठीक ना? एक बार ब्रीफिंग करते हैं पूरे पॉइंट को, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी रोज की आदत रहेगी, ध्यान रखना है। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट में उसको बाइंड अप जरूर करेंगे, ठीक ना?
और जो समरी होगी लास्ट की वो सबसे ज़्यादा काम की होगी, ध्यान रखो, पूरे टॉपिक को एक साथ मिला देगी। आप थोड़ा इधर दिमाग से भाग भी जाओगे तो वैसे तो मेरी क्लास में भाग नहीं पाओगे, मेरी नज़रें रहती हैं आप पर, ठीक ना। फिर बच्चे कुछ तेज होते हैं, वो भाग जाते हैं क्लास से, बॉडली तो बैठे रहते हैं बट मेंटली दे कंप्लीटली, ठीक ना, डेविएटेड समटाइम्स, ठीक ना, फ्यू टाइम्स कुछ याद आ जाता है। चलो देखें जरा, रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। मेटाफिजिक्स, चारवाक फिलॉसफी बिलीव इन मेटलिज्म, so materialistic aspect completely discuss this metaphysics. In metaphysics point of view, philosophy discuss three aspects. Every philosopher discuss three aspects in philosophy: world theory, soul theory, and conception of God. In Indian philosophy, when we discuss world theory, then Indian philosophy believes in 5 elements. They are earth, fire, water, air and ether or space. But Charvak philosophy believes in 4 elements, because 4 elements are based on perceptual experience, lives in sense contact. Space is not perceptible, and Indian philosophy believe in space by inference. So Charvak philosophy not believe in space. After that, Charvak philosophy define nature of elements. According to Charvak philosophy, these elements are considered in compound form. We cannot believe in atomic form, because atoms are not based on perception. If anyone believe in atom, they are inferred, based on inference. So Charvak philosophy directly believe in compound, that is Sanghat. By this term, Charvak philosophy define world theory. According to Sanghat, these elements integrate with each other by their natures. This is the naturalism. These elements integrate with each other. Another aspect, this theory is called naturalism, accidentalism, and this is Swabhavavad. These terms are same for world theory for Charvak philosophy. But this world theory is not acceptable by a lot of philosophers. Critics criticize world theory which is presented by Charvak. Space is necessary for integration and disintegration, because space is medium. Without medium, Charvak cannot define integration for these elements. Again, there is another scientific error, because if there is compound, then atom is necessary, because every compound reality based on atoms. Again, Charvak philosophy believe in Sanghat. This is the integration. But if there is world theory, then world theory based on any efficient cause, otherwise any theoretical aspect. But Charvak philosophy not believe in efficient cause. Those who believe in God, they consider God is efficient cause. Efficient cause in reality that cause who properly define evolution, creation or dissolution. So Charvak philosophy only believe in Sanghatvad. So Charvak only define creation, a design, but not define dissolution, that is pralay. So Charvak philosophy comfortable in Srishti but not comfortable in pralay. But Srishti and pralay both are necessary for world theory. And Charvak philosophy not believe in theoretical aspect. There are lot of philosophies, they do not believe in God.
like evolution theory. God is not required in philosophy. Those who do not believe in God, they consider theoretical aspect, but Charvak philosophy ignored. So Charvak world theory is not appreciable, not admirable. Philosophical point of view, this world theory is completely full of contradiction. This is incomplete philosophy, incomplete world theory. सेकेंड टॉपिक आपका बना इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सोल. चारवाक बिलीव इन मेटलिज्म. मेटलिज्म बेस्ड ऑन सेंस कॉन्टेक्ट. सेंस कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू कैन नॉट बिलीव इन इटर्नल परमानेंट सोल, and traditional thought believe in eternal permanent soul. Charvak says, if anyone want to know what is soul, then I say there is no difference between body and soul. Again Charvak say, if anyone want to know consciousness, well, consciousness is nothing but this is the combination of four elements. If these four elements interact with each other, then they define consciousness. Like as example, if we combine leaf, petal, lime and nut with each other, then we have a red color. So red color compare with consciousness. Any consciousness comes from unconscious elements. This is the scientific error in Charvak philosophy, because unconscious elements cannot define consciousness. Okay? And this is the this concept is harmful for ethics. So you define without immortality we cannot define karma theory, we cannot define ethics. So social and individual point of view, this concept is not acceptable. At last Charvak philosophy discuss conception of God. According to Charvak philosophy, if Charvak believe in materialism, so Charvak believe in sense contact. To sense contact point of view, Charvak philosophy did not believe in God, because God is transcendental reality, beyond sense reality. So Charvak not believe in God. If anyone believe in God, they have two aspects for God: for world theory, for ethics. So world theory directly borrowed from first concept. In ethics point of view, this concept completely borrowed from concept of soul. Clear? This is चारवाक philosophy. यही थी आपकी चारवाक philosophy. आप समझ सकते हो पूरा का पूरा टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 minutes का है. Now you are comfortable in चारवाक philosophy. Okay? आज के लिए इतना ही. फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो दिल्ली सेंटर पर, पुणे पे और हैदराबाद पे उन्हें अब सीट मिलेगी और उस पेपर को करेंगे और अपनी कॉपी स्कैन करा के भेजेंगे जयपुर. ठीक ना? ओके, थैंक यू.